let's get started with our next class today, where the heading is types of codes. Yeah, understanding the basic types of codes जो हमारे पास है. We have, as of now, we know about this one, which is decimal representation. जहाँ पे हम representation लेते हैं from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay. Now there is a code named as, we call it as BCD code, binary coded decimal. Binary coded decimal coding या कोड आप लिखिए इसका नाम. इस केस में बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसकी जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं ओनली फ्रॉम 0 to 9 अगेन. लेकिन हम क्या करते हैं, हर एक डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग बाइनरी 4-bit बाइनरी नंबर. ठीक, ये कोई इतनी खास चीज नहीं है. इट इज सेम एज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. This code is also known as 8421 code. You will remember the names. 8421 code. देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें ऑलरेडी पता है ना. आपने किसके नंबर्स मुझे कॉल किया? इसके नंबर. सो उसमें हमारे पास 9 तक डिजिट्स होते थे. इस बीसीडी में बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स या कोडिंग स्कीम में भी हमारे पास 9 तक ही डिजिट्स जो है. हाँ, 8. इसका नाम है दूसरा 8421 कोड. इट इज नेम्ड एज, जस्ट राइट, इट इज नेम्ड एज 8421 कोड. Another code, what do we mean by this code? Code actually is different ways of representing a particular number. Like for example, we had decimal, then we had binary. Okay? What we are trying to do is that we are trying to represent a particular number in terms of different code. We had binary, we had octal, we had hexadecimal, right? Likewise, there were numbers system. Here we are trying to represent this binary number into different codes. अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, because we will be using soon some coding techniques जो हमारे किसी particular operation में help करेगा. ठीक है? Another type of code is known as XS3 code. XS3 code, ये वाला जो हमारा कोड है, ये स्टार्ट होता है with someone you feel the binary equivalent of 3 and then goes up till 4, 5, ये भी 4-bit हम लेंगे यहाँ, 6, then 7, then 8. ये 8 नहीं है बाय द वे, मतलब ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आती है. यूजुअली रिप्रेजेंट वहां करना है इसको, लेकिन समझने के लिए इट इज बेटर दैट यू मेक दिस ग्राफ एंड देन मेक द इक्विवेलेंट ऑफ दीस. दिस इज 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 0 0. इस कोड की एक खास बात है, ये देखिए, XS3 code is a non-weighted self-complementary code. XS3 code is a non-weighted self-complementary code. Non-weighted.
नॉन वेट क्या हुआ? मतलब जिसका वेट नहीं हो, मतलब देखिए जो आपने बाइनरी कन्वर्शन किया ना उसका वेट था लाइक 2 is 0 2 is this is like that, ऐसा नहीं। दिस इज अ नॉन वेटेड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। अब असली सवाल ये है कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से एज यू मूव डाउन, eyes on board, eyes on board, eyes on board means everyone should look towards the board irrespective of whatever you are writing. Even if you are writing a word, you should half stop and look towards the board. If you look towards this number or the representation of this number and this number is actually the complement of each other, right? Are they? यहाँ 0 1 1 1, यहाँ 1 0 0 0. समझ आया? ये इसका complement है. What is complement? कंप्लीमेंट अगर 1 0 0 1 0, अगर भी यार कंप्लीमेंट कर मतलब बार करिए 0 1 1 0, आया समझ? Likewise, this number is a complement of this number. Yeah, this representation is complement of this representation. And as we move on, this representation is a complement of this representation. As it goes good, this is a complement of this representation, and this one is a complement of this representation, isn't it? Again, okay? So that's why we will name this as XS3 code is a self-complementary code. ठीक? Okay. To convert any BCD code, to convert any into XS3 code, we add 0 1 0 0 1 1 to it. मतलब अगर बिकॉज BCD कोड 0 था, हमने इसको 3 ऐड किया तो आपका XS3 कोड निकल गया। आपके पास 2 था, आइज ऑन बोर्ड, आपके पास 2 था, आपने इसको 3 ऐड किया तो 5 निकल गया। आप समझ मेरी बात? क्रक्स ये है BCD कोड से अगर हमें XS3 कोड में कन्वर्ट करना है, द की इज वी ऐड 3 टू दैट नंबर। 3 को दबो 1 1 को 3 1 जैसे जैसे तुम्हें उसको फ्रेंड पेज दो ना सकते। आपके क्लासेस के लेक्चर्स है वो कैफेटेरिया के लेकिन पूरे नहीं किए हैं। मैंने कहा था एक कॉपी के फ्रंट पेज होना चाहिए आपका वो ना कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर। दिस इज गुड दैट यू हैव कवर्ड दैट। बट मैंने आपसे कहा था एक पेज ऐसा रखिए जहां पे सारे नंबर का कन्वर्शन होगा। कैन एनीबॉडी शो हिम, कैन एनीबॉडी टेक द रिस्पांसिबिलिटी, कैन एनीबॉडी शो हिम व्हाट आई मीन? आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हां, आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आया? आपको समझ आया? इसको दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ इफ आई आस्क यू 6 का XS3 कोड क्या होगा? should be 9 and it is exactly 9, ठीक है? एनीवेज नेक्स्ट पॉइंट जरा लिखिए, ग्रे कोड। ये हम अलग से थोड़ा हेडिंग देंगे, ग्रे कोड। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज ग्रे कोड। ग्रे, GRAY। ग्रे कोड एक खास टाइप ऑफ कोड है, इसलिए हम उसको थोड़ा अलग देख रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग हैज टू बी ग्रे कोड। इसका दूसरा नाम है मिनिमम
error code. Point number 1. Point number 2, it is also non-weighted code. It is also a non-weighted code. Non-weighted मतलब जिसका हर एक डिजिट का वेट नहीं हो, मतलब जिस तरह बाइनरी आप देखते हैं उसका वेट है 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2. It has a weight. Every digit has a place value. Non-weighted means will not have a place value for this. Point number 3. In this successive numbers, under this coding scheme, successive numbers will differ by 1 bit. Therefore, it's also known as unit cannot known as therefore it is a unit distance code. Example, say for example हमारे पास है 0 0. The next code will differ only by 1 bit. या तो ये वाला मान हो जाएगा या तो ये वाला मान हो जाएगा, ऐसा मतलब ग्रे कोड में एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने में खाली एक बिट चेंज हो सकती है, दोनों चेंज नहीं होती. मतलब the next code cannot be 1 1. This is incorrect. ऐसा मतलब एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन जाने में खाली एक बिट हम चेंज कर सकते हैं. सर लेकिन ये तो बाइनरी में भी था ना. हाँ बाइनरी में भी था ना ये. नहीं ऐसा नहीं. आप देखिए देखो जी, जरा पहले हम बाइनरी में लिखते हैं. सपोज बाइनरी में लिखते हैं 0 0, नेक्स्ट आएगा 0 1, तीसरा आएगा 1 0, चौथा आएगा 1 1. राइट, सही है ना. ये eyes on board. This one is binary. Now if I do same thing, if I try to represent using 2 bits in gray code मैंने कहा कि from one to another only 1 bit changes. So let's assume मैंने 0 को 1 चेंज कर दिया और ये 0 रहा. Now again only 1 bit changes. What is the possibility? Either I make this 1 as 0, eyes on board, but वो वापस यही नंबर आएगा. So this is foolish. So I will change this 0 to 1. So 1 1. Next, I have now a choice to either convert this to 0 or convert this to 0. अगर मैं इसको 0 करूँ ये नंबर वापस आएगा. So the right choice is to make it 1 0. So ये आपका आ गया ग्रे कोड using 2 bits only. आपको समझ आया? किसको समझ नहीं आया? रेज में हैंड. गुड. I'll repeat it again. देखो जी बेटा, ये बाइनरी कोड था. मतलब बाइनरी में हमने 0 लिया था ऐसे, 1 हम कहते थे ये है, 2 ये है, 3 ये है. ठीक है, ये हम सबको पता है ना, ये. लेकिन मैं कहता हूँ ग्रे कोड में हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी. रेस्ट्रिक्शन क्या है? दैट एज वी मूव फ्रॉम वन कोड टू अनदर only 1 bit can change. So मैंने इसको चेंज किया टू 1, रिजल्टेंट कोड बन गया 0 1. ठीक. अब मेरी रेस्ट्रिक्शन क्या है? only 1 bit can change. अगर मैं इस 1 को eyes on board, अगर मैं इस 1 को 0 कर दूं तो नंबर क्या आएगा? नंबर आएगा 0 0. बट वो तो वापस हम पीछे जा रहे हैं, हमें एडवांस करना है ना, पीछे नहीं जा रहे हैं. So this means that changing this 1 to 0 is not the right policy. Right policy is to change this 0 to 1, और वही हमने किया. इस 0 को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया और ये वाला 1 as it is है अपनी जगह पे. ठीक, ओके. Now 1 1 से अब मुझे रेस्ट्रिक्शन फिर से यही है कि एक ही बिट चेंज होगी. अगर मैं ये वाली बिट चेंज करता हूँ लेफ्ट वाली 0 1, तो मैं वापस पीछे जाऊंगा ना. That is not good. मुझे कहाँ एडवांस करना है. और अगर ये 2 बिट्स है, आप दोनों में से कौन सी मैं चेंज करूंगा कि नेक्स्ट कोड बनेगा? अगर मैं ये वाली बिट चेंज करूंगा 0 करूंगा, मैं कहाँ पीछे जाऊंगा.
कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ इसको? मैं यहाँ हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक ग्रे कोड नंबर में जनरेट कर रहा हूँ। ग्रे कोड में रेस्ट्रिक्शन है दया बिटमन थाकबा अकुई या दया दिशमन थाकबा अकुई डिजिट चाहिए। ठीक है? वह अगर भी 1 1 अगर भी ये बनावन 0 सुबह तक कोई नंबर पे ही वापस समझ सही वो मैं नो नंबर जनरेट कर बिकॉज इसलिए यू वो 0 तो ये इस 1 को मैंने 0 बनाया तो नया नंबर बन गया। समझ आया? समझ आया? जिसको समझ नहीं आया था अब समझ आया रेज योर हैंड। ओके गुड। आपको नहीं आया था? हाँ फिर से समझ नहीं आया? नहीं इतना काफी है। इसके बाद आप मेरे पास आएंगे बिकॉज बाकी क्लासों में से हिसाब करना है। हाँ नहीं जोर से कर बोलो जोर से। हाँ हाथ नीचे रखो। हाँ? पहले वाले में एक ही डिजिट चेंज करने की इजाजत है ना मुझे। मैं दोनों नहीं चेंज कर सकता। ये हाँ बिकॉज इसका जो है ना ये है ना LSB वाला ये है ना LSB। आप कह रहे हैं कि ये वाला चेंज करें यार ये ना LSB। ये LSB ना मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ऑब्वियसली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं ना अक्सर। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ 5 बिट नंबर लाइक 000 अब आप यहां से 1 लगाएंगे कि यहां से 1 लगाएंगे? Please help someone help him. I cannot help him beyond this. Okay. Because I cannot figure out the confusion. Actually, यहाँ कोई confusion नहीं है. It's a self-created confusion. Must come. Okay, next point. हाँ. अब जरा आप सबके लिए एक छोटा सा assignment है. Question है आपको 000. Next ग्रे कोड बताइए. पहला है 000. नेक्स्ट ग्रे कोड बताइए. शाबाश. Eyes on board please. Now I have a question for you that if you have 3 bits, if you have 3 bits, hey, if you have 3 bits and you are supposed to make the gray code of these, क्या आएगा इसका ग्रे कोड? 001 011. हम इसको ऐसे करने से पहले इसका एक शॉर्टकट मेथड लेते हैं. सपोज इससे पहले कि हम वहां जाएं पहले हम एक पॉइंट टच करेंगे. सपोज मेरे पास कोई नंबर है 1011. दिस इज अ बाइनरी नंबर. मैं चाहता हूं कि मैं इसका ग्रे कोड वैल्यू निकालूं. आइज ऑन बोर्ड. ओ प्रभजोता उसका नाम जोत बनेगा से बस निश्चित का सामने से मशीन गाइस मेरा नाम परमजोत दरअसल प्रभजीत से मतलब से ज्योति. हां चले ज्योत क्या होगा भाई? ज्योत. इज दैट ओके? ज्योत क्या होता है? इट मींस लाइट. पान पाई ज्योत क्या होता है? ज्योत होता है दिया लाइट कोड. सो आइज ऑन बोर्ड प्लीज. आई हैव अ पॉइंट टू से अगर मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है मुझे इसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड निकालना है. Very important. Please mention it important. Important means important. Okay. I have a number. I want to convert into gray code. The procedure is this. You keep the MSB bit as it is. Okay. You keep the MSB bit as it is, and then perform the XOR operation of these two bits. XOR of these two will be 1 0 का XOR क्या आएगा? 1. अब इसका और इसका XOR
एंड गेट्स आपने नहीं पढ़े, बेसिक गेट्स हमने पढ़े क्लास में, हमने पढ़े बेसिक गेट्स क्लास में, कब पढ़े? क्या पढ़े? हमने पढ़े क्या? नहीं पढ़े ना। कोई बात नहीं। पहले आपने साइड में हेडिंग लिखिए XOR ऑपरेशन। XOR ऑपरेशन क्या होता है सुनिए जरा। अगर मेरे पास 2 बिट्स है, जो 2 बिट्स है तो कितनी कॉम्बिनेशन होगी उसको नाम? हाँ कैसे नाम? बेस पूर्ण नाम क्या है? अगर मुझे बेस पे फाइन बेस नो मैं आपसे कह रहा हूं स्पेसिफिकली XOR ऑपरेशन क्या होता है? XOR ऑपरेशन मींस when you have even number of ones in a binary combination the output is 0. XOR gate कुछ इस तरह से दिखता है। XOR gate is a digital gate। A मैंने इनपुट दिया है, B इनपुट दिया है, Y इसका आउटपुट है। A और B अगर 0 0 है, Y आएगा 0। या मैं दूसरे तरीके से इसको कहूं, I is on board please। When there is even number of ones, output is 0. When there is odd number of ones, output is 1. Odd number of ones, output is 1. Even number of ones, output is 0. Even number of ones जब होंगे ना आपकी इनपुट में, जितने भी बिट्स होंगे, 2 बिट्स हो या 10,000 बिट्स हो, if the combination has even number of ones, output of the XOR gate will be 0. Right? Because इसमें कोई 1 नहीं है, so we take this as even for now. Odd would mean 1 and odd number कौन कौन होता है? 1 क्या होगा ना? हाँ, भाई तो 1 तो अगर एक 1 होगा तो odd number of ones आ रहे हैं। अगर 2 1 होंगे किसी बाइनरी सीक्वेंस में, वो odd number है, even number है। 2 1 2 is even number, so नहीं। अगर ऐसे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? राइट। अगर ऐसे हो गए तो 1, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज़ दिस इज ऑड नंबर ऑफ 1। So that is why this is at times known as a parity gate इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लें, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब इस गेट के ऑपरेशन को मैं इस तरह से लिखता हूं, y is equal to a XOR b। तो इसलिए मैंने बस ये साइन यहां पे यूज की, XOR b। समझ आया? eyes on board please। I call this as y is equal to a XOR b। Therefore I just use this sign over here। अब XOR में क्या होता है जी? प्लस जो थोड़ा आपने व्हाट्स होता था ये बस तो 1 और 0 का XOR करना है, आंसर क्या आएगा? एक्सीलेंट। 0 और 1 का XOR करना है, आंसर क्या आएगा? 1 और 1 का XOR करना है, आंसर क्या आएगा? यस शाबाश, यस पता। थैंक यू वेरी मच। क्या चीज? Repeat your question, क्या पूछ रहे हो? So the procedure to convert any binary number into a लिख लीजिए। Therefore the procedure to convert any binary number into a equivalent gray code is to keep the MSB bit as it is। Keep the MSB bit, लिखना बोलो जो। The procedure to convert any binary number to its equivalent gray code is: step number 1, keep MSB bit as it is। To convert any binary number to gray code is: keep MSB bit as it is। Step number 1. Step number 2, XOR successive bits to get the rest of the digits। ठीक है, XOR successive bits to get the rest of the digits। देखिए जी, अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली, this is how much? This is 11 बाइनरी में, ये 12 है बाइनरी में। ठीक, इस मेथड की स्टैंडर्ड होने को चेक करने के लिए हमने नेक्स्ट नंबर दिया 12।
अब हम इसका निकालेंगे ग्रे कोड, आइजन कोड, और इस ग्रे कोड और इस ग्रे कोड में बस एक बिट की डिफरेंस होनी चाहिए, तब जाके ये मेथड जो है ये स्टैंडर्ड या ये क्रेडिबल है। सही बात है ना? सो आप जरा चेक करें 1 1 1 1 0 0 and only one bit has changed to 0 0. So therefore, now if you continue, what is the next number after this? 1 1 0 1. Just try it out. Just try it out. 1 1 0 1. इसका ग्रे कोड क्या आएगा? करो, आपको आता है। 1 1 0 1. क्या सर? 1 1 0 1. वेरी नाइस भाई, इस तरह करो, इस तरह मैं कर रहा हूँ, थोड़ा और पेज खर्च करो, इसको दो यूज करें। 1 1 0 1. थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। हाँ 1 देखो ये वाली बिट आप खुद करो, ये वाली बिट एज इट इज, इन दो का XOR सेम इवन नंबर ऑफ वंस है भाई, 0 आएगा, इन दो का XOR 1 आएगा, इन दो का XOR 1 आएगा। Now is there only one bit that is changing? 1 2 3 4. Exactly, this 0 has changed to 1. So I think this method is standard. We can rely on this. Not I think, but it is actually standard. It does not go to me. Those who have found this method. अच्छा जी, हाँ जी। अब आपके लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आपको आप एक सर्किट बनाना है, अगर आपको आप एक सर्किट बनाना है जिसके इनपुट में आप देंगे, आप अपना बाइनरी नंबर देंगे, तो दिस इज बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। आपने बाइनरी डिजिट दिया विच इज B3 B2 B1 and B0. By the way, this happens to be B0, this happens to be B1, this is B2 and this one is B3. That means MSB वाली बिट कौन सी है? B3 वाली। Eyes on board? MSB वाली बिट कौन सी है? B3, ठीक है? ओके, अब आउटपुट में क्या निकलेगा मुझे? ग्रे कोड। सो लेट मी से G3 G2 G1 एंड G0। अगर मैं अब आपसे कहूं कि मुझे एक सर्किट बना के दीजिए जो बाइनरी कोड को कन्वर्ट करेगा इनटू ग्रे कोड, कैन यू डू दैट? हु कैन डू दैट? रेज योर हैंड। कैन यू डू दैट? टू डिजाइन अ सर्किट जो हमारे बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करेगा, यू हैव टू यूज ओनली XOR गेट। आप देखो कैसे होता है। देखो जी, XOR गेट देखा ना अभी आपने? XOR गेट कुछ इस तरह से होता है, उसके दो इनपुट्स होते हैं A B एंड आउटपुट होता है 1। इस केस में अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं। इस केस में my B3 will go as it is to the output. B3 will go to output as it is, right? My other two bits, that is B2 and B3, will be given to an XOR gate and output is called as G2. Am I correct? Am I correct? वही हमने इससे पहले कहा ना? Now likewise this B2 and B1 are given to the XOR gate. This will generate my G1 bit. Now my B1 and B0 will be given to an XOR gate and this will generate my G0. Therefore इस box actual hardware implementation अगर हम बात करें तो, and that is what the digital subject is about, we come to know the internal structure, the basic structure behind. Someone who is really interested to know deep inside will find this subject really nice. आपको समझा है? So कुछ नहीं करना है, B3 को मैंने as it is दिया जो मैंने कहा था, सक्सेसिव बिट्स को मैं XOR कर रहा हूँ और नेक्स्ट बिट जनरेट हो रही है। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? कितने % कंफ्यूजन है आपको? नहीं? ओके, जोर से क्या? ये है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। हमने एक ब्लैक बॉक्स बनाया, उसको हमने नाम रखा बाइनरी टू ग्रे कोड
कन्वर्ट, ठीक है। सो दिस इज द सर्किट। एक छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए है। डिजाइन अ 4-bit ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर। रिवर्स करना है आपको। कुछ लोग ट्राई भी कर सकते हैं यहीं पे। असाइनमेंट खत्म। सो क्वेश्चन इज असाइनमेंट कौन नोट डाउन कर रहा है? आप कर रहे हो नोट डाउन? असाइनमेंट में कर रहे हो ना फ्रेंड? डिजाइन अ 4-bit ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्टर। यू कैन जस्ट ट्राई। उसमें हाँ करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब जिस तरह आपने इस वाली बिट को एज इट इज दिया तो पहली बिट तो एज इट इज आएगी और बाकी बिट्स एक्सऑर हो जाएंगी। मतलब G3 और G2 एक्सऑर होके क्या आएगी? B2। देन B2 एंड नहीं आप इसको खुद से देखिए। नो आई कैंसिल दिस क्लू, दिस इज नॉट द राइट क्लू। आप ये मेथड खुद देखेंगे, ठीक है जी। अब असली हमारा सवाल जो था वो क्या था कि हमने वो कुछ बिट्स लिए थे। हमने लिया था 0 0 0। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 0 0 1। उसके बाद 0 1 1। उसके बाद 0 1 0। उसके बाद 1 0 0। उसके बाद 1 0 1। उसके बाद 1 1 1। उसके बाद 1 1 0। Just check this is the right sequence that you also were able to generate, or there is some error. कुछ एरर है क्या? So the next heading आप यहाँ से by the way ये सीक्वेंस यहाँ से आएगी, ठीक है? 0 यहाँ से होके एक एक बिट का बदल। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए जिसके लिए हमने असली BCD को पढ़ा। वो हेडिंग है के मैप। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कॉर्नर मैप। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं के मैप मेथड फॉर रिडक्शन या मिनिमाइजेशन of Boolean expression. K-map method for reduction or minimization of Boolean expression. Boolean expression के लिए, Boolean function के लिए, this is up to बेसिक गेट्स यूनिवर्सल गेट्स नहीं पढ़े? क्या क्या? Okay, when do we have the next class? कल थर्सडे, ठीक है। जरा इससे पहले हम इस पे जाएं कि मैं रिडक्शन में आप थोड़ा एक बार इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अपनी सहूलियत के लिए। वो ये है कि देयर आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ गेट्स। आप देखिए टाइप्स ऑफ गेट्स, इसमें पहले सब हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ गेट्स या बूलियन फंक्शंस। टाइप्स ऑफ गेट्स और बूलियन फंक्शंस। द फर्स्ट वन आप एक सिमेट्रिक तरीके में नोट बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वन happens to be the NOT gate, यहां हम इसको कहते हैं NOT फंक्शन। इसका पार्ट ए लिखेंगे बूलियन, या पहले इसका लिखिए सिंबल। पार्ट ए इज सिंबल। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ए एंड दिस इज वाई।
पार्ट बी, बूलियन रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो इसकी इस तरह से होती है, y इज इक्वल टू बार ए बार। इसका मतलब y में क्या जाएगा, नॉट ऑफ a। दिस इज हाउ वी रीड इट, y इज इक्वल टू नॉट ऑफ a। सपोज a अगर कोई वेरिएबल था विच वाज 1, नॉट ऑफ a करने से उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। नॉट मींस कम, ठीक। So this is the Boolean representation or Boolean function और expression, इसको हम कहते हैं Boolean expression। इसका ये होगा y is equal to not of a। तीसरा पॉइंट इसका exactly right, ट्रुथ टेबल जो इसका होगा, सिंस एक ही इनपुट है। अच्छा ये याद रखना, नॉट गेट इस यहां पे लिखिए ओनली वन इनपुट गेट, नॉट गेट खाली एक इनपुट लेता है। नाउ एक इनपुट की मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कितनी होंगी, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब y इज इक्वल टू a बार, y इज इक्वल टू a बार, मतलब अगर a 0 है आउटपुट में क्या आएगा, 1। अगर a 1 है आउटपुट में 0 आएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू a बार। समझ आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट गेट आप गेट क्या है, एंड गेट। नेक्स्ट वाला गेट आप लिखिए एंड गेट। इसमें पहला पार्ट क्या आएगा, सिंपल। सिंबल इसका कुछ है इस तरह से, दो इनपुट्स है, एक b बनाइए एंड दिस इज योर आउटपुट y। सो y, दिस इज a, दिस इज b। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बूलियन एक्सप्रेशन is given as y is equal to a dot b। ठीक है जी, ये डॉट हो गया एंड, ठीक है, a dot b। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, इसका क्या है, ट्रुथ टेबल। इसका ट्रुथ टेबल कितने वेरिएबल्स हैं इनपुट में, 2 वेरिएबल्स, मतलब a और b है इनपुट और आउटपुट आएगा इसका y। तो 2 वेरिएबल्स की कितनी कॉम्बिनेशंस, 2 बिट्स या 2 वेरिएबल्स की कितनी कॉम्बिनेशंस आती हैं, 4। तो पहली क्या होगी, 0 0, दूसरा है 0 1, तीसरा है 1 0 1 1। मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब डॉट जो होता है एंड 0 डॉट 0, हमने देखे ना वो थ्योरम्स, याद है आपको, क्या बोल रहे हो, हमने नहीं पढ़ा है, थ्योरम्स तो पढ़ी ना हमने। 0 एंड 0 आउटपुट इज 0, 0 एंड 1 आउटपुट इज 0, 0 1 डॉट 1 आउटपुट इज 1 ओनली फॉर दिस केस व्हेन बोथ आर हाई। ठीक है, सो एज अ कोड प्लीज शॉर्टकट में याद रखने के लिए, एंड गेट में जब दोनों 1 होते हैं तब 1 आएगा, वरना सब में 0 आएगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट गेट कौन सा है आपका, हाँ जी हाँ, ये आपका दिख रहा है 2 इनपुट गेट है। हाँ, इसमें मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो बेसिक गेट है इसका वो 2 इनपुट। नेक्स्ट गेट आपका आएगा और, एग्जैक्टली राइट, और गेट। और गेट का पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट सिंबल। सिंबल आएगा इसका कुछ इस तरह से, ये एक कर्व लाइन आएगी, एज अ बोर्ड, ये एक कर्व लाइन आएगी एंड ये भी थोड़ा कर्व लाइन आएगी, ये भी थोड़ा कर्व है। नॉट गेट नहीं बनाना, नॉट गेट जो था वो हमने इस तरह से बनाया है, ट्रायंगल और छोटा सा बबल, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है, ये 2 इनटू होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बूलियन एक्सप्रेशन जो इसका होगा, y is equal to a plus b, this is called as OR operation। so c part जो इसका ट्रुथ टेबल है, a और b 2 वेरिएबल्स हैं, आउटपुट आएगा y। so 0 0 0 1 1 0 and 1 1, सही। और में
क्या होता है, जब दो जीरोस होंगे तब आउटपुट जीरो होगा। जब दोनों में से एक भी आएगा बोथ केस, और गेट के लिए जब दोनों ही जीरो होंगे तब जीरो आएगा। अदरवाइज फॉर ऑल केसेस 1 1 1 आएगा जब दोनों में से एक भी या दोनों 1 या हाई। ठीक है ना, ये और गेट की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, अब लिखिए नोट, ऑल अबव 3 गेट्स आर नोन एज बेसिक गेट्स। ये जो ऊपर वाले 3 गेट्स हमने पढ़े इनको हम कहते हैं बेसिक गेट्स। ठीक है जी, बेसिक गेट्स, इन तीनों को हम कहते हैं बेसिक गेट्स। कहां पे स्टार्ट होने वाली की हो गई? ओके फाइन, दीज आर द बेसिक गेट्स एंड